Good morning, students. Today we are discussing about the working of p-n junction diode. That is how the p-n junction diode is formed and how the depletion between the p-n junction diode is formed. So, in the last lectures, we have studied about the formation of p-type semiconductor and n-type semiconductor. So, you know, in p-type semiconductor, the majority carriers are the holes, and in n-type semiconductor, the majority carriers are the electrons. Okay. So p-n junction डायोड कैसे बनेगा, उसकी वर्किंग कैसे होगी, सिंपल कैसे होगा वो देखते हैं आगे. Now p-n junction means when a p-type semiconductor crystal is brought in contact with the n-type semiconductor crystal, then resulting arrangement is called p-n junction or junction diode. अगर p टाइप लेयर को हम n टाइप लेयर के साथ लेके आते हैं, दोनों क्रिस्टल को हम सैंडविच करते हैं, तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट आएगा उसको बोलेंगे हम p-n जंक्शन डायोड. तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज p रीजन, दिस इज द n रीजन, और इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये आएगी, जैसे ट्राइंगल बनाई हुई है इस तरह से आएगा, और एक हमने ऐसे लगा देना, शो करना है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, आगे हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन ऑफ p-n जंक्शन डायोड. So to make a p-n junction, the n-type and p-type silicon crystal are cut into thin slices called buffers. तो हमने n-type और p-type semiconductor की क्रिस्टल की स्लाइसेस लेनी है, उसको buffers बोलते हैं. ओके, if an buffer of n-type silicon on aluminum film is placed and एक हमने n-type silicon ले लिया, उसके ऊपर एल्यूमिनियम फिल्म प्लेस कर दी, उसको हीट करेंगे एट अबाउट 580 डिग्री सेल्सियस, देन we will see that aluminium diffuses into the silicon. तो जो एल्यूमिनियम है वो सिलिकॉन में डिफ्यूज हो जाएगी. In the same way, p-type semiconductor is formed on the n-type semiconductor. Such a formation of p region on n region is called as p-n junction. तो इस तरह से जैसे हमने n-type semiconductor के ऊपर हमने एल्यूमिनियम को डिफ्यूज किया, in the same way on the n-type of semiconductor we can diffuse p-type semiconductor on it, so it becomes the p-n junction. Now next we will discuss about a depletion region and barrier electric field, potential barrier electric field in the p-n junction. तो कैसे डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है उसको डिस्कस करेंगे हम. So in an n-type semiconductor, electrons are the majority carriers, हमने स्टडी किया हुआ था, and holes are the minority carriers. So in p-type semiconductor, holes are the majority carriers and electrons are minority carriers. So when p-n junction is formed due to the difference in concentration of charge carrier in two regions of p-n junction, देखो जो मेन कारण होता है इसका डिफ्यूजन का, वो मेन कारण होता है ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे, होल्स वो दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे. द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n region diffuses through the junction into p region and holes from p region diffuses into n region. This the motion of charge carrier gives rise to diffusion current across a junction. When an electron diffuses from n region to p region of a junction, p-n junction, it leaves behind an ionized donor atom, and in n region having positive charge as diffuses on electron continue from n region to p region of p-n junction, more positive charge donor atoms are created in n region, resulting in a layer of positive charge on n region. अब मैं आपको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूँ. अब देखो इसमें आपके पास आ रहा है, दिस इज द n region, दिस इज द p region. और n region में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे. इट मीन्स यहाँ पे होल्स तो थोड़े बहुत होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होल नहीं होंगे, इसमें होल्स भी होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बट जो क्वांटिटी है वो इसमें होल्स की ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. मेजोरिटी कैरियर इन n रीजन इसमें होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें होगी होल्स की. अब होता क्या है, ड्यू टू द चेंज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, अब इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, उसके कारण क्या होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दे मूव टूवर्ड्स द p रीजन. अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाते हैं डिफ्यूजन करते हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर देते हैं, होल्स के साथ डिफ्यूजन कर देते हैं, वो नील हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कम्युलेट हो जाते हैं। एंड सम ऑफ द होल्स दे मूव फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। जब होल्स यहाँ पे आएंगे तो होल्स विल अकोमोलेट नियर द पी रीजन, तो यहाँ पे होल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, सिमिलरली व्हेन द होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन इन पी एन जंक्शन देन लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड एक्सेप्टर एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पी रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक्सेप्टर एटम लीव करेगा। देन इन पी रीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज as diffusion of holes continue from p region to n region of p-n junction, more negative charge will create near the p region। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज region on n side and negative charge on p side, a formation of electric field is set up across the junction. Its positive terminal to n region and negative terminal to p region. This electric field of the potential barrier at the junction which opposes the diffusion of majority charge carrier which oppose the region. Due to this electric field, further diffusion will not be created in this process. Okay, now we will see in the diagram। इसमें क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम्युलेट हो गए, बहुत सारे यहाँ पे प्रोटॉन से कम्युलेट हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। ये आपके पास पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर या डिप्रेशन लेयर बोल देते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोल देते हैं, डिप्रेशन लेयर। दिस इज द डिप्रेशन लेयर। नाउ हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इस साइड नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और साइड आएगा पॉजिटिव। ये साइड होल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो आपके पास है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पहले आपके पास था या पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे था आपके पास। तभी जो होल्स हैं वो इस साइड मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड कनेक्टेड है। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है यहाँ पे, इसका जो देखो, इसका जो चार्जेस द पोटेंशियल है वो इस साइड नेगेटिव आ रहा है, इस साइड पॉजिटिव आ रहा है। सो इट मीन्स ये टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इट विल अपोज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। ओके, सो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ड्यू टू द विड्थ या ड्यू टू द डिफ्लेक्शन लेयर, इट विल अपोज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, so this is all about how the depletion layer is formed in p-n junction diode. Our next topic is discuss of various modes of biasing in p-n junction diode. अब biasing कितने टाइप की होती है? There are two types of biasing. Number one, this is the forward biasing, and number two is the reverse biasing. अब forward biasing क्या होगी? When p-n junction, the p-n junction is said to be forward biased if the positive terminal of external battery is connected to the p side and negative terminal of external battery is connected to n side. अगर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का p साइड से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल n साइड से कनेक्टेड होगा, देन द जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। इसमें देखो जरा, फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने बताया था कि इफ p इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड n इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो रिपेल करेगा, तो इट मीन्स जो होल्स हैं वो इस रीजन में जाएंगे, नेगेटिव रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में आएंगे। सो दिस इज अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग। इसकी हम एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और रिवर्स बाइसिंग जो आपके पास आता है, इफ p रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड n रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो दिस इज द रिवर्स बाइसिंग। अब आपके पास जो आता है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द अप्लाइड वोल्टेज V ऑफ ए बैटरी mostly drop across the depletion layer and the voltage drop across the p side and n side of p-n junction is negligible। तो जो वोल्टेज जो ड्रॉप होती है मैक्सिमम जो डिप्लेशन लेयर पे होती है सेंटर में, p रीजन और n रीजन में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है। रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज वेरी हाई इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर की रेजिस्टेंस जो है, डिप्लेशन लेयर रीजन में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इसकी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।